सबको नमस्कार। आज इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो पिछले कुछ समय में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं हम उनके बारे में आपको आज बताएंगे। আমরা যে গত কয়েক সময় নিয়ে যে ইন্ডাস্ট্রি এবং কমার্স ডিপার্টমেন্ট মধ্যে যে নতুন প্রজেক্ট, নতুন স্কিম, নতুন ইনভেস্টমেন্ট যে আমরা শুরু করেছি, এটা নিয়ে কিছু আজকে কথা বলবো। স্টেট গভর্নমেন্টের যে মান্থলি প্রেস ব্রিফিং এর একটা পার্ট মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট গতকালকে শেষ হয়েছে, তারপরে আমরা এটা আবার প্রেস ব্রিফিং শুরু করেছি। আপনারা সবাই জানেন একটা পিএম একতা মল, ইউনিটি মল হচ্ছে আমাদের এখানে জুট মিল যেখানে আছে, জুট মিল কমপ্লেক্স মধ্যে। তো এটা একটা প্রজেক্ট আমরা শুরু করতে পেরেছি। তারপরে রাজ্যে প্রায় 45,000 মাইক্রো মিডিয়াম स्मॉल एंटरप्राइज আছে, ছোট উদ্যোগ আছে। তো এই সবকে সার্ভে করে ট্রেনিং, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করার একটা প্রজেক্ট আমরা নিয়েছি, RAM, রেজিং এন্ড অ্যাক্সেলারেটিং দ্য এমএসএমই পারফরম্যান্স। এটা একটা ভারত সরকারের একটা প্রজেক্ট। আমরা ভারত সরকার থেকে প্রায় 65 করোড় টাকা আমরা পেয়েছি। তো আমাদের উদ্দেশ্য আছে কমপক্ষে 3,200 এন্টারপ্রেনারকে আমরা আগামী দিনে আমরা ট্রেনিং করাবো, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, মার্কেটিং সাপোর্ট ইত্যাদি আমরা করব। আমরা অনেক ইনভেস্টমেন্ট সামিট মধ্যে আমরা অংশগ্রহণ করেছি, যেমন ভাইব্রেন্ট গুজরাট, এটা হায়দ্রাবাদ মধ্যে হয়েছিল, মুম্বাই মধ্যে হয়েছিল, তারপর কলকাতা, গুয়াহাটি, মিনিস্ট্রি অফ ডোনার থেকে আয়োজন করা হয়েছিল। তো আমরা গত এক বছর মধ্যে প্রায় 14 এমওইউ আমরা সাইন করেছি, আর 6 মিডিয়াম সাইজ উদ্যোগ এখানে ইনভেস্টমেন্ট করেছে। রাজ্যে যে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য কম সময়ের মধ্যে পারমিশন, লাইসেন্স অথবা সার্টিফিকেশন করা হয়, এই জন্য আমরা বিজনেস রিফর্মস আমরা করছি। তো এই বছর ভারত সরকার থেকে অ্যাকশন প্ল্যান দেওয়া আছে, এখানে 287 অ্যাকশন পয়েন্ট দেওয়া আছে, আমরা এখানে কাজ করছি। তারপরে পিএম বিশ্বকর্মা, আপনারা জানেন যে পারম্পরিক যে কলা কৌশল আছে আমাদের নর্থ ইস্ট মধ্যে, সেটা প্রায় 50,000 লোক এখানে আবেদন করেছে পিএম বিশ্বকর্মা মধ্যে। তো আমরা এখানে অ্যাপ্রুভাল করে প্রায় 10,000 জনকে আমরা ট্রেনিং শুরু করেছি। তারপরে যে গত মাসে 19-20 মে ভারত সরকারের সচিব, মিনিস্ট্রি অফ মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের সচিব শ্রী সুভাষ চন্দ্র লাল দাস মহোদয় এখানে ভিজিট করেছেন ত্রিপুরাতে। উনি অনেক নির্দেশ আমাদেরকে দিয়েছেন, ম্যাডাম ডিটেল মধ্যে বলবে। তারপরে ভারত সরকারের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট স্কিম, এটা 8 এপ্রিল থেকে শুরু হয়ে গেছে। উন্নতি, এটা এখানে যারা উদ্যোগ শুরু করবেন ওদের জন্য ক্যাপিটাল ইনসেন্টিভ প্রায় 7.5 কোটি টাকা পর্যন্ত দেওয়া যায়, অন্যান্য বেনিফিট আছে, সেটা নিয়েও আমরা আপনাকে ব্রিফ করবো। রাজ্য সরকার একটা স্কিম আছে, ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্টমেন্ট ইনসেন্টিভ স্কিম, টিপস 2022 থেকে আছে, এটাও আমরা রূপায়ণ করছি। আমাদের রাজ্যের যে আইটিআই যে অ্যাডমিশন প্রসেস ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাবে, আগামী সোমবার থেকে 10 জুন থেকে শুরু হয়ে যাবে। তো সেটা নিয়ে আমরা
কাজ করছি আর আইটিআই মডার্নাইজেশন একটা প্রোগ্রাম আছে ভারত সরকারের স্ট্রাইভ প্রোগ্রাম মধ্যে আমরা মডার্নাইজ করছি যে ফুড প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি জন্য স্কিম আছে আপনারা জানেন আমাদের কুমারঘাট যে ইন্ডাস্ট্রি সেট থেকে যে পাইনঅ্যাপল ক্যানিং করে আমরা গত 2 বছর যাবত ইউরোপ মধ্যে পাঠাচ্ছি এই ধরনের অনেক ছোট মিডিয়াম উদ্যোগ আমাদের রাজ্যে আসছে তারপরে অনেক প্রজেক্ট আমাদের টিআইডিসি টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন একটা অকশন সেন্টার শুরু করেছে মার্চ মাসে আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আছে আমাদের বাংলাদেশ থেকে যে আমদানি রপ্তানি তো আমাদের সাবরুম ল্যান্ড পোর্ট 9 মার্চে উদ্বোধন হয়েছিল তারপরে গত মাসে 23 তারিখ আগরতলাতে ভারত আর বাংলাদেশ থেকে জয়েন্ট মিটিং হয়েছে এখানে আমাদের আধিকারিক বাংলাদেশ আধিকারিক এবং যারা হলদিয়া চট্টগ্রাম আশুগঞ্জ পোর্ট দিয়ে যারা কাজ করে এরকম লজিস্টিক্স কোম্পানি এখানে ছিল আমাদের রাজ্যের যারা ট্রেডার্স ওখানে ছিল এই যে ট্রেড রুট চিতগাঁও আশুগঞ্জ হলদিয়া এটা দিয়ে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট শুরু করার জন্য যে প্রসিজার এখানে সবাইকে বোঝানো হয়েছে এখানে অনেক ওদের কোয়েরি ছিল কত সময় লাগবে কত পারমিট লাগবে কোথায় কি ফিস ভরতে হবে অনেক এখানে সুবিধা অনলাইন করা গেলে সুবিধা হবে আমার মনে হয় যে চট্টগ্রাম এবং আশুগঞ্জ পোর্ট দিয়ে যে আমাদের রপ্তানি এটা কয়েকদিন মধ্যে শুরু হবে তো আমি আমাদের ডাইরেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ বিশেষজ্ঞ ম্যাডামকে বলবো একটু ডিটেল মধ্যে উনি বলবেন सो पीएम एकता महाजला होता से ये जूट मिल 4.18 एकड़ पौधे हो रहा है ये पूरा 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 114 करोड़ जो है वो भारत सरकार से हमें फंड के रूप में मिल रहा है और ये हमने अगरतला स्मार्ट सिटी से हम लोग ये करवा रहे हैं तो टेंडर भी फ्लोट हुआ है और अवार्डिंग भी हो गया है किछु दिनों मध्य ये काज भी शुरू हो जाएगा इसमें मेन ये है कि हमारे पास हमारे त्रिपुरा पे जितना भी ओडीओपी प्रोडक्ट्स है और हमारे एसएचजीस का जितना भी प्रोडक्ट्स है वो सब यहाँ पे डिस्प्ले होने के लिए सुविधा रहेगा उसके अलावा भी उस मॉल में कुछ कमर्शियल भी स्लॉट्स लगेंगे एंड कुछ मल्टीप्लेक्स भी रहेंगे सो दैट पूरा एंगेजमेंट हो जाएगा जैसे सर ने बताया था हम एमएसएमई के लिए एक रैप का रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस बोल के एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने इसका प्रपोजल भेज के अराउंड 65.17 करोड़ हमें स्टेट के लिए ये मिला है इसमें हम लोग अगले 3 साल में 32,000 यूथ को हम एमएसएमई के स्कीम्स के रूप में एक्सपोजर देंगे उनको ट्रेनिंग करेंगे हमारा चेष्टा ये रहेगा कि 32,000 यूथ को जब हम लोग एक्सपोजर कराएंगे उनसे कम एटलीस्ट 10% लोग हमें एमएसएमई को वो एस्टैब्लिश करके उसको इम्प्रूव करें इसके साथ साथ हमें उनको जैसे बाकी एमएसएमई मिनिस्ट्री के जो स्कीम्स है लाइक जेड सर्टिफिकेशन हो लीन सर्टिफिकेशन हो ये सब में भी हम उनको हेल्प करेंगे इसके लिए एक हेल्प डेस्क भी हर एक ब्लॉक में भी हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं ये सब हो जाएगा जो इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में हमने नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट जो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर से किया गया था इसमें पूरा 14 एमओयूज त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ 14 एमओयूज हमने साइन किया है पूरा 1861 करोड़ का ये अमाउंट है ये 14 एमओयूज में 6 लोगों ने ऑलरेडी काम भी शुरू कर चुके हैं और 3 ऑलमोस्ट लैंड भी अलॉट हो चुका है वो लोग शुरू करेंगे बाकी हमारा प्रोसेस में है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो अभी हमारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट है इसमें त्रिपुरा 2016 में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले इसमें था अभी भी हम लोग इसमें अच्छे पोजीशन में है इस साल हम और इम्प्रूवमेंट ये कर रहे हैं ताकि हमारा पूरा इंडिया में हमारा टॉप 5 पोजीशंस में हम आने के लिए इसके लिए इन द मंथ ऑफ मार्च हमने पूरा डिपार्टमेंट्स के साथ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को लेके भी एक वर्कशॉप किया है
तो इसमें पूरा 291 रिफॉर्म्स होगा। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको बिजनेस कम्युनिटी को त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इसको कैसे इजीली करा सकते हैं। तो हम ये आशा कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट इंडिया में हम लोग टॉप में रहेंगे। जैसे सर ने बताया था, हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन में एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन होता है। आज के दिन में हमारा 57,000 एमएसएमईज रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें करीबन 30% मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में है एंड अराउंड 40% ट्रेडिंग सेक्टर में है एंड इसमें 30% जो है वुमेन ओरिएंटेड एमएसएमईज है। तो रैंप स्कीम के अंदर और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से हम इसको डिटेल में इनका एक सर्वे कर रहे हैं एंड इस सर्वे के माध्यम से हर एक एमएसएमई मतलब पूरा 57,000 एमएसएमईज का हम लोग सर्वे करने वाले हैं और उनमें उनका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको सपोर्ट करने का ये कर रहे हैं। इसी मुताबिक में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस साल 67 करोड़ का एक प्रोजेक्ट प्रपोजल हमने भेजा है। इसमें मेन जो हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तारित रूप से है नहीं, जैसे खोवाई सिपाही जिला, सो इसमें कुछ इंडस्ट्रियल के लिए डेवलपमेंट के लिए लैंड आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें हम इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंडिंग के सपोर्ट के थ्रू इसमें डेवलप करने वाले हैं। और पीएम विश्वकर्मा जो प्रोजेक्ट है, हम उसमें 18 ट्रेड्स को हम लोग जो आइडेंटिफाई करके उनको विश्वकर्मा का हम आईडी देते हैं। मेन ये है कि जितना भी हमारे ट्रेडिशनल आर्टिजान्स जो है उनको आईडी देके उनका एक रिकॉग्निशन करके देन हम उनको स्किल अपग्रेडिंग करके देन उनको लोन की तरह हेल्प करने के लिए ये पूरा विश्वकर्मा का प्रोजेक्ट का मेन ये ही है। तो आज के दिन में पूरा 50,000 एप्लीकेशन हमारे पास आया है। इसको 3 लेवल पे वेरिफिकेशन करते हैं। पहले पंचायत लेवल में होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी उसका वेरिफिकेशन होता है, देन उसके बाद आके स्टेट लेवल पे होता है। तो स्टेट लेवल में आज के दिन में 10,000 एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुके हैं एंड ये वेरिफिकेशन होने के बाद इनका ट्रेनिंग शुरू होता है। तो ऑलरेडी 2,500 लोगों को इसमें ट्रेनिंग हुआ है। ये ट्रेनिंग होने के बाद इनको टूल किट दिया जाता है। टूल किट देने के बाद देन वो लोग लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब हमारे सेक्रेटरी सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब सेक्रेटरी सर आए थे, SCL दास सर आए थे, उन्होंने ये बताया था कि त्रिपुरा के डे 1 से पीएम विश्वकर्मा में हमने अच्छा सा इनिशिएटिव लिया। हालांकि हमारे में कुछ प्रॉब्लम्स थे बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोऑर्डिनेट करके हमने इसको अच्छा इम्प्लीमेंट किया। त्रिपुरा हैज इम्प्लीमेंटेड बेटर इन ऑल द स्टेट्स, उनका ऑब्जर्वेशन ये था। देन हमने जो हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो है, टिप्स स्कीम जो है, इसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हम इंडस्ट्रीज को देते हैं, जैसे कैपिटल इंटेंसिव सब्सिडी, पावर का सब्सिडी, ये सब देते हैं। तो हमने लास्ट 5 साल में 250 यूनिट को 33.61 करोड़ ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने उनको इंसेंटिव के रूप में मिला है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से लास्ट 5 इयर्स में पूरा 52.50 करोड़ दिया गया है। ये नीड्स का स्कीम था। अभी वो नीड्स का स्कीम मॉडिफाई करके उन्नति उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियल स्कीम बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 9 मार्च को इसका घोषणा किया था। इसमें क्या होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न में जितना भी जिलाएं हैं उसको जोन ए और जोन बी कैटेगरीज में करेंगे और उसमें जो भी इंडस्ट्रीज है उनको उसके हिसाब से इंसेंटिव्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है जो जोन ए में है उनको 30% अप टू मैक्सिमम 5 करोड़ तक उनको इंसेंटिव मिलेगा। जोन बी में जो है 50% मैक्सिमम अप टू 10 करोड़ तक उनको इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा किसी ने अगर लोन लिया है तो जोन ए में 3% एंड जोन बी में 5% तक उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा 7 साल के लिए। एंड इसके अलावा 100% नेट जीएसटी का रिफंडमेंट है बोथ इन जोन ए एंड जोन बी। सो अगर देखा जाएगा तो एक इंडस्ट्री उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैक्सिमम 250 करोड़ तक एक इंडस्ट्री इसमें इंसेंटिव्स के रूप में ले सकती है। अभी हमारे स्टेट में करीबन 8 यूनिट्स रेडी हैं इस स्कीम में बेनिफिट्स लेने के लिए। अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनका शुरू इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स लेना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि हमारे पास 90 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 19 ITIs है, जिनका हम एडमिशन शुरू कर रहे हैं इस साल में। 10 जून से शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा। डिफरेंट प्रोसीजर्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। इसके लिए आज हम प्रेस नोट भी दे रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट भी देने वाले हैं।
एंड 16 जुलाई में फर्स्ट सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद अगर कुछ सीट्स और भी अगर बचे हुए हैं कहीं पे और गैप है तो वॉक-इन्स भी हम लोग शुरू करेंगे। तो हमारे स्टेट में पूरा 3975 सीट्स है अक्रॉस 36 ट्रेड्स में है। इन सब के लिए हम लोग एडमिशन शुरू कर रहे हैं। देन फूड प्रोसेसिंग में हमने लास्ट ईयर 434 केसेस में हमने ग्रांट्स को स्पॉन्सर किया था, जिसमें 7 करोड़ का इनको सैंक्शन हुआ है। ये मेनली कोई भी अगर फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड प्रोसेस करके वो अगर सेल करेंगे उनके लिए ये बहुत एडवांटेज है। 35% तक इसमें कैपिटल सब्सिडी है एंड अभी तक हमने 10.28 करोड़ हमने एसएचजीस को सीड कैपिटल के रूप में भी इसको दिया है। आपको पता है कि हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएमएजीपी हमारा मेन स्कीम है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट ईयर पूरा 40 करोड़ का लोन अमाउंट डिसबर्समेंट हुआ है अराउंड 570 लोगों के लिए एंड पीएमएजीपी 2 में 3.21 करोड़ हमने डिसबर्समेंट कराया है। फॉरेन ट्रेड को अगर देखा जाए तो देन हमारा सबरूम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने 9 मार्च को इसको इनॉग्रेट हुआ है। तो इसमें बोथ पैसेंजर एंड फ्रेट दोनों का भी प्रोविजन है। तो जैसे ही ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा दोनों तरफ से तो हमारे स्टेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रीनगर बॉर्डर हाट जो है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर 9 मई से ही वो ऑपरेशन है। कमला सागर भी कुछ दिनों में ये शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश से भी कंफर्मेशन आया है तो मे बी इन 1 मंथ और सो इसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। लास्ट ईयर अगर बांग्लादेश से अगर हम ट्रेड देखेंगे तो पूरा 715 करोड़ का था। इसमें मेजर इंपोर्ट थे 703 करोड़, एक्सपोर्ट हमने किया था 12.31 करोड़। हमारे पास जो लैंड कस्टम स्टेशन है खोवाई, मुगरीघाट और प्रहालमुरा, ये तीनों को एंड धर्मानगर का ये तीनों को हम लैंड पोर्ट अथॉरिटी को हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि उसको वो आईसीपी के तौर पे अच्छा सा डेवलप करें। देन उसके बाद अगर हम कॉर्पोरेशंस के हिसाब से आते हैं तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सब कॉर्पोरेशंस का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। मेजर है त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसमें लास्ट ईयर में टीआईडीसी ने स्पेशली जो लैंड हम लोग लीज आउट करते हैं इंडस्ट्रीज को वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, सो लास्ट ईयर लीज एंड लीज प्रीमियम के तौर में 9.08 करोड़ टीआईडीसी ने कलेक्ट किया है, रेवेन्यू अर्न किया है, विच हैज बीन द हाईएस्ट सो फार एंड ऑलमोस्ट कैश प्रॉफिट 6.84 करोड़ आया हुआ है 2023-24 में। ये प्रोविजनल है, फाइनेंस स्टेटमेंट होने के बाद हमें पता चलेगा। जैसे मैंने बताया था तो इंडस्ट्री टीआईडीसी अभी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स खोवाई में, सिपाही जला में एंड ऊनाकोटी में ज्यादा लैंड लेके एंड शांति बाजार साउथ त्रिपुरा में भी हम लोग लैंड देके इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वहां पे डेवलप करने वाले हैं। देन अदर इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेशन इज त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसमें जैसे अभी सेक्रेटरी सर ने बताया था कि ई ऑक्शन सेंटर हमारा इस साल शुरू वो इनॉग्रेशन हो गया है। इसका प्रोसेस शुरू हुआ है एंड सम सिलेक्शन एंगेजिंग ऑफ ई ऑर्गेनाइजर फॉर ई ऑक्शन वो प्रोसेस में है, वो होने के बाद ये शुरू होगा। इसके अलावा टीडीडीसी के तरफ से ब्रह्मकुंडा टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री को एक मॉडर्नाइजिंग का प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें एनईसी से हमें 2.03 करोड़ का अमाउंट मिला हुआ है। देन माचमारा टी एस्टेट जो है, जो बहुत पुराना वाला है, उसको भी रेनोवेशन करने का ये एक मिनी टी प्रोसेसिंग फैक्ट्री वहां पे लगाने का प्लान है विद 2.27 करोड़, इसको टीआईडीसी कर रहा है। एंड टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक टी मैनेजमेंट कोर्स भी करने का प्लान कर रहे हैं, एलईबी यूनिवर्सिटी के साथ इसको कोलैबोरेट करके प्लान करने के लिए कर रहे हैं। तो ये सब हुए हैं हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मेजरली जितना भी अचीवमेंट्स हुआ है। सो स्किल डिपार्टमेंट में मेजरली हमारा मुख्यमंत्री दक्षता उन्नयन प्रकल्प लास्ट बजट में हमारा जो अनाउंस हुआ है 50 करोड़ के लिए फॉर द इफेक्ट ऑफ 5 इयर्स। इसमें हम मेजरली ये करेंगे कि अभी तक हम लोग जितना भी स्किल प्रोग्राम्स कर रहे थे वो ग्रेजुएशन होने के बाद जो स्टूडेंट्स या बच्चे जो जॉब के लिए वेट कर रहे हैं उनको स्किलिंग करने के लिए हमारा प्लान था। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स रहेंगे, चाहे किसी भी कोर्स में हो, नर्सिंग में हो या कॉमर्स में हो, किसी भी कोर्स में हो, आईटीए में हो, पॉलिटिक में हो, उनको हम मोर एम्प्लॉयबल मतलब मार्केट रेडी हम उनको कैसे कर सकते हैं,
ये इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। तो हम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके सब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को हम इंग्लिश स्पीकिंग, देन डीपीआर प्रिपरेशन, कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस, कुछ बेसिक जो स्किल्स होते हैं उसमें हम उनको ट्रेनिंग करने वाले हैं। रफली अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स विल बी ट्रेन्ड एंड इसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज भी करेंगे, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। ऑलरेडी एक बैच इसमें शुरू हो गया है, जो टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर जो बोर्जी नगर अगरतला में जो है उसमें 90 कैंडिडेट्स को हमने ट्रेन किया है, ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में किए हैं। इसके अलावा स्किल डिपार्टमेंट नल जल मित्र ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहा है। हमें पता है कि जल जीवन मिशन बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहाँ पे हर घर के लिए जल दिया जा रहा है, बट वो कनेक्शन मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए नल जल मित्र बोल के एक स्किलिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्किल डिपार्टमेंट। इसमें टोटल 1262 कैंडिडेट्स को हम ट्रेनिंग करेंगे। ये कैंडिडेट्स को पंचायत ही स्पॉन्सर करेगा, कंसर्न पंचायत ही स्पॉन्सर करेंगे। तो आज के दिन में 106 कैंडिडेट्स को ये ट्रेनिंग करके सर्टिफाई किया गया है, जिसमें 43 महिलाएं हैं। एंड अभी सेकेंड ट्रेनिंग हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं। स्किल डिपार्टमेंट में कुछ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी होना शुरू हुआ है 2022-23 से। तो तब से लेके अभी तक 18 बच्चों को हमने प्लेस किया है, स्पेशली जापान में। बाकी कंट्रीज का भी हम ट्राई कर रहे हैं। आज के दिन में और 5 लोगों को भी ट्रेनिंग में वो लैंग्वेज ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो होने के बाद हम इनको भी प्लेस करेंगे। इनका एवरेज सैलरी है रफली अराउंड 1 to 1.5 लाख पर मंथ। हर साल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स जो है वो स्किल कंपटीशन कराता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिल्ली में ही होता है। तो हमने इस साल 34 कैंडिडेट्स को 5 डिफरेंट ट्रेड्स में हमने भेजा है। इसमें त्रिपुरा को 3 मेडालियन ऑफ एक्सेलेंस, उसमें मतलब आउट ऑफ दिस 3 2 साइबर सिक्योरिटी में और एक हेल्थ एंड सोशल केयर में मेडालियन ऑफ एक्सेलेंस मिला था। और जो 2 लोग गए थे उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, मतलब जॉब ऑफर्स भी मिला है वहां पे। होपफुली दे विल बी जॉइनिंग सून। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना बोल के एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर का हमने इसमें 12 करोड़ का प्रपोजल भेजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पूरा 5000 बच्चों को ट्रेन करने के लिए। ये पूरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और इस साल में जो स्किल डेवलपमेंट से हम लोग करने वाले हैं, इसका एक कंसाइज रूप में बताते हैं। सर, शबनम LCS कब तक शुरू हुआ? शबनम LCS को अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस जो देखता है, उनका मीटिंग हुआ था दिल्ली में 26 अप्रैल को। उसमें सबसे पहले होगा कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है उनसे नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमारी कोशिश है कि बांग्लादेश के तरफ से आप अगर वहां जाए तो पेनी रिवर के ऊपर जो मैत्री स्थित हुई वहां से आप देख सकते हैं। उधर उनका भी एक लैंड पोर्ट तैयार हो गया है। तो उनका लैंड पोर्ट भी हम उन्होंने जो प्रॉमिस किया है कि पैसेंजर के लिए वो सितंबर महीने तक वो शुरू करेंगे, सितंबर तक। हाँ, और कुछ टाइम लगेगा उनको। जो ट्रक और बाकी वहाँ पे जो पार्किंग एरिया और व्हीकल टेस्टिंग वगैरह का वहाँ पे ये होगा। तो मेरे ख्याल से बाय सितंबर यहाँ से पैसेंजर मूवमेंट शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद जो गुड्स मूवमेंट है वो भी 2-3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। नहीं होगा। और कमलेश्वर रोड जो हाट है, बॉर्डर हाट, वो तो बहुत दिनों से बंद है। मैडम ने बोला था कोविड में एक्चुअली बंद हुआ था, कोविड में बंद हुआ था और उसका भी कुछ मॉडर्नाइजेशन भी हुआ है हमारी तरफ से, उनका तरफ से। तो अभी इसी महीने में हम लोग चालू करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो मैडम ने अभी आपको बताया कि त्रिपुरा में पिछले कुछ सालों में नेशनल हाईवे का काम हुआ है, लेकिन अगर हम इस नेशनल हाईवे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उद्योग नहीं उसके ऊपर स्थापन करेंगे, तो उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। इसलिए इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये नेशनल हाईवे के ऊपर वो कैलाश शहर से शुरू करके कमलपुर, खुवई, सागदिर बाजार और सबरूम तो है ही,
तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है इसमें अगरतला, डुगली, बदरघाट, बुचनगरी तो हमारे पुराने इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। तो ये जो 4 जगह हमने अभी चिन्हित किया है, एक है खोवई में, एक है सिपाहीजला में हम लोग कुछ लैंड टी गार्डन से हमने मांगा है, वो हमें मिलने की उम्मीद है। शांति बाजार में हमें लैंड हेरिटेज डिपार्टमेंट ने अभी फिलहाल में एनओसी दिया है, और सबरूम में एसईजेड है। तो नेशनल हाईवे के ऊपर नया इंडस्ट्रियल एस्टेट करने का ये डिपार्टमेंट का बड़ा निर्णय है। इस अगले 3-4 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये नए इंडस्ट्रियल एस्टेट चालू हो जाए। ऐसे ही अम्बासा में जहाँ से रेलवे जा रही है और जहाँ से अभी अगरतला से चंपकनगर अभी 4 लेन का काम शुरू हो जाएगा, वो टेंडर भी हुआ है। तो दूसरा पार्ट उसका मुंगिया कामी से चंपकनगर का भी काम अगले साल शुरू हो जाएगा। तो पुराना जो हमारा हाईवे है ये भी स्ट्रेट हो रहा है और 4 लेन हो रहा है। ये सिलचर से सबरूम तक होगा। इसके ऊपर भी अभी हमने लालछरी में अम्बासा में हमने इंडस्ट्रियल एस्टेट हमने लैंड वहां लिया है और काम चालू किया। तो नेशनल हाईवे के ऊपर इंडस्ट्रियल एस्टेट करना ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का टॉप प्रायोरिटी है। और जो बाकी जो जितने इनिशिएटिव्स है ये इसको सपोर्ट करने के लिए है। पिछले 5 सालों में इंडस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना हो सकता है, क्या गवर्नमेंट एनवायरमेंट सब मिला एम्प्लॉयमेंट? अब देखिए, मैडम ने जैसे बताया कि 1 साल में ही करीब हमारे 6 मीडियम उद्योग आए। जैसे मैं उस दिन विजिट में गया था, एग्जाम्पल जैसे रबर वुड है हमारे पास। तो रबर वुड का प्रोसेसिंग करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं रहती पुराना। अभी बुचननगर में हम आपको एक दिन ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे वो फैक्ट्री। वो रबर वुड से जो लैमिनेशन होता है ना, जैसे डोर को लगाते हैं, इतना तक का वो रिवाइल प्रोडक्ट बनाता है। तो वो डेली 50 टन करता है, वहाँ करीब 200-250 लोग काम करते हैं। तो ऐसे 6 उद्योग हमने चालू किए। दूसरा जो संख्या हमारी एमएसएमई की है, जो पिछले कुछ 25,000-26,000 उसकी संख्या थी हमारे पास उद्योग पोर्टल है, वो संख्या 57,000। लेकिन उनको सबको और भी आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, सर्टिफिकेशन करने के लिए वो रैम प्रोजेक्ट लिए। तो हम लोग रोजगार से ज्यादा स्वयं रोजगार के ऊपर जोर देते हैं। और मेरे ख्याल से कि कुछ लोग हैं त्रिपुरा में, मैंने देखे, हमें मिले लोग वापस आ रहे हैं बाहर से। जो बाहर गया था 10-15 साल 20 साल बाहर काम किया, वो लोग वापस भी आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे अभी रोजगार शुरू होना चालू हुआ है। जैसे रेलवे से यहाँ सामान भेजना लाना इजी हो गया, तो यहाँ पे ट्रेड करना भी इजी हो गया। सर थोड़ा ये है रिटर्न में थोड़ा चाहिए, बांग्लादेश के साथ कितने बिजनेस हुआ था लास्ट ईयर? ये तो डिटेल्स है 765 करोड़ हमारा बिजनेस लास्ट ईयर हमारा 715 करोड़ का हमारा ट्रेड हुआ है विद बांग्लादेश 2023-24 में। इसमें 703 करोड़ का इंपोर्ट है और 12 करोड़ का एक्सपोर्ट है। अगर मॉनेटरी टर्म्स में अगर देखा जाए तो हमारा अगरतला जो लैंड पोर्ट है वहां से मैक्सिमम ट्रेड होता है, फिर श्रीमंतपुर में होता है, फिर खोए में होता है और कैलाशहर में। ये 4 पोर्ट से अभी ट्रेड होता है। सर नया बॉर्डर हाट का जो प्रपोजल था कुछ हुआ क्या? नया बॉर्डर हाट में आपने देखा होगा कमलपुर में काम चालू है और बॉर्डर हाट का हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम लोग वहाँ शुरू करेंगे। फिर रागना में जो धर्मनगर के पास है, वो भी वहाँ पे भी कुछ हमारी तरफ से तो इशू नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कुछ इशू है, वहाँ पर भी काम हो रहा है। और खोए में भी एक प्लान है एक बॉर्डर हाट करने का, वहाँ काम चालू नहीं हुआ। और एक हमारा प्लान है बेलोनिया के पास। तो हमारी तरफ से हमने लैंड सेलेक्ट करके उनको कम्युनिकेट किया है
तो बांग्लादेश जब तक उनका लैंड अरेंज नहीं करता हम लोग काम चालू नहीं कर सकते। जैसे हमने कमलपुर में दोनों तरफ से लैंड हो गया और उसके बाद रागना में भी होगा। कमलपुर में काम चल रहा है यस कंप्लीशन स्टेज पे रामनगर का जो डिस्प्यूट था, लैंड डिस्प्यूट को हमारी तरफ से हो गया, उनका तरफ से चालू कर, उनका तरफ से कुछ टी स्टेट वगैरह है उधर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।